So good morning all of you. So continue for that. So pumping action of the heart के बारे में अपन पढ़े हैं. Now working mechanism of human heart के बारे में पढ़े तो working mechanism of human heart के बारे में यहाँ पे देखें तो अपन यहाँ पे देखें तो जनरली इसमें पहला कार्डियक साइकिल. So what is meant by cardiac cycle here when we see? Generally, I already told you. So in the last class, the human heart alternately contract and relax. The contraction and relaxation. That is systole and diastole will be occur. So the contraction is already I told you what it called. यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. The human heart ये point लिखेंगे. ठीक है ना? Human heart majorly go for which one? The alternate human heart alternately contracts and relax. So अपन बोले contraction को क्या बोले systole बोल के, relaxation को क्या बोले diastole बोल के बेटा. Okay ना? So the contraction which is called as systole and relaxation is called as diastole. No? So atrial and ventricle contract what alternately majorly. So here systole and diastole what constitute a single heartbeat. What it called? The consecutive systole and diastole constitute a single heartbeat. I already told you. Or it is called as cardiac cycle. A single contraction and relaxation. That is we called as what? The systole and diastole. What it called? A single heartbeat is called as what? क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक साइकिल बोल के बोला जाता है. तो एक सिंगल हार्टबीट इज नथिंग बट व्हाट? अ वन कार्डियक साइकिल बोल के बोला जाता है. इट इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकंड्स में. 0.8 सेकंड्स. एक कार्डियक साइकिल में कितना? 0.8 सेकंड. एंड एन एवरेज दैट्स व्हाई 72 टाइम्स आर कंप्लीटेड इन 1 मिनट. सो इन द एडल्ट में. सो इसमें 0.8 इंटू 60 अपन 72 टाइम्स यहाँ पे होता है बेटा. सो ऐसा क्या होता है? तो जनरली दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कंसिडर्ड एज विच वन? कार्डियक साइकिल. वन कार्डियक साइकिल विल बी कंप्लीट इन हाउ मच? 0.8 सेकंड में. सो इसमें कौन सा स्टेप्स होता है एक बार यहाँ पे देखेंगे. इन ईच कार्डियक साइकिल इट कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल. क्या क्या रहता है बोलते? इसमें 3 रहता है बेटा. एट्रियल सिस्टोल, ओके ना. सेकंड ventricle systole and third one joint diastole. So in each cardiac cycle these particular type of what it called steps are present. That is atrial systole, ventricle systole and joint diastole. These 3 are completed in how much? 0.8 seconds only. So how it will be, we'll discuss in this the continuation. So यहाँ पे एक बार देखेंगे अपन. So in this cardiac cycle first अपन देखेंगे atrial systole के बारे में. First one atrial systole. So ये atrial systole में क्या रहता है यहाँ पे देखिए AS. So generally already we know that right atrium which receives deoxygenated blood and left atrium receives which one? Oxygenated blood. Here right atrium receives deoxygenated blood. ओके ना. कहाँ से? वो बॉडी पार्ट्स में. ओके ना. सो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा बोला गया ना. सो वहां से क्या होता? राइट एट्रियम क्या करता है बोलते? डिऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव किया जाता है. लेफ्ट एट्रियम सेम रिसीव्स व्हाट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके ना. फ्रॉम वेयर? लंग्स. कहाँ से? वो लंग से. Okay na. Right atrium receives which one? Deoxygenated blood from the which one? The body parts. Left atrium receives the oxygenated blood from the lungs. When both the atria are completely filled with the blood. यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे. When both the atria are completely filled with which one? Blood.
ओके ना, दोनों भी एट्रिया क्या हो बोलो तो ब्लड से फिल हो गया। समझो कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा क्या कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा क्या कर रहा है बोले तो अपर बॉडी पार्ट्स लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आया, राइट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन्स क्या किया बोलो तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आया, तो दोनों अभी क्या हो गया, फिल हो गया। ओके ना, बोथ द व्हाट इट कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम आर फिल्ड विद द ब्लड। अभी क्या होता है बोलते जनरली, देन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द विच वन वॉल। अभी उनका वॉल के ऊपर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। सो बाय द प्रेशर, बाय दिस प्रेशर, ओके ना, क्या होता है तो एसए नोड, बाय द प्रेशर क्या होता है तो एसए नोड गेट एक्साइटेड। एसए नोड क्या होता है, यहाँ पे एक्साइट होता है, एक्साइटेड एंड जनरेट व्हाट, कार्डियक इंपल्स, एंड जनरेट्स व्हाट, कार्डियक इंपल्स। बोलते फर्स्ट इंपल्स जो होता है वाइब्रेशन का वो कहाँ से आया है, राइट सॉरी एसए नोड से। ओके ना, कब होता है वो, when the particular type of both the atria are filled with the blood completely, then the wall of the atria will be what it called having a pressure. That pressure, by this pressure SA node what get excited and generate the which one, cardiac impulse beta. Okay na, and due to this cardiac muscles in the atrial wall will be contract. Due to this the muscle in the atrial wall what contracts, कौन सा वो, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो एट्रिया वॉल में है ना वो क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट हुआ जाता है बेटा। ओके ना, एंड दैट कॉजेज द विच वन, एट्रियल सिस्टोल। इसको क्या बोलता है, एट्रियल सिस्टोल बोल के बोला जाता है। तो व्हेन द ब्लड इज केम इनटू द विच वन, एट्रिया, सो एट्रिया के वॉल में ब्लड पूरा फिल हो, एट्रिया में ब्लड पूरा फिल होने के बाद उनके प्रेशर से एसिड में क्या होता है, फर्स्ट इंपल्स चालू होता। सो वो कार्डियक इंपल्स से क्या होता है बोलो तो एट्रिया का मसल में कार्डियक मसल क्या होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। By that contraction what happen, the particular type of atria will go for what, systole। इसको क्या बोलता है, atrial systole बोल के बोला जाता है बेटा। So during this atrial systole, blood pumped from the atria to ventricle। During this atrial systole क्या होता, blood pumps from what, atria to ventricles। कौन सा, deoxygenated blood from the right atrium to right ventricle, and oxygenated blood from the left atrium to left ventricle में आ जाता है बेटा। ओके ना, so blood pumped into the which one, ventricle, then the blood is prevented from going back। ओके ना, अभी जो एट्रिया से, अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सुनिए ये सेम फिर से और एक बार। अभी यहाँ पे क्या हो गया बोल तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है, वो आने के बाद फिर से पीछे जाने का चांसेस रहता ना। ओके ना, सो द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिवेंट द गो बैक ऑफ द व्हाट वेन्स एंड कोरोनरी साइनस बाय यूस्टैचियन एंड थेबेसियन वाल्व। ओके ना, क्या होता है बोलते वो कहाँ से, ये पीछे आपको बोले थे ना मैं, इंफीरियर वेना कावा में क्या रहता है बोले तो यूस्टैचियन वाल्व रहता है, एंड कोरोनरी साइनस में कौन सा, थेबेसियन वाल्व रहता है। सो वो दोनों को क्या होता है बोलते मेजरली प्रिवेंट करने के लिए, बोलते ब्लड प्रेशर इधर वेंट्रिकल से ऊपर अलग है, बट ये पीछे नहीं जाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे यूस्टैचियन वाल्व, यहाँ पे थेबेसियन वाल्व रहता है बोल के अपन को पता है बेटा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग सिस्टोल क्या होता, द एट्रिया आर गोइंग टू विच वन, डायस्टोल। सिस्टोल होने के बाद क्या होता, डायस्टोल में चले जाता है बेटा। एंड इधर क्या होता है, आई एम सॉरी दिस इज नॉट नाउ, सॉरी छोड़ दीजिए। अभी क्या होता है बोले तो ब्लड एक बार एट्रिया में आ गया ना, सो ये राइट एट्रिया में आने के बाद ब्लड फिर से इंफीरियर वेना कावा को और क्या होता है कोरोनरी साइनस को चले जाने का चांसेस रहता है बेटा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे यूस्टैचियन वाल्व रहता है, यहाँ पे थेबेसियन वाल्व रहता है। सो ऐसा क्या होता है तो मेजरली दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एट्रियल सिस्टोल विल बी ऑकर। सो इन द नॉर्मल कंडीशन एट्रियल सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकंड में कितना रहता है, 0.1 सेकंड। बताओ कार्डियक साइकिल में, कार्डियक साइकिल पूरा 0.8 सेकंड बोल के मैं आपको बताया था, तो उसमें एट्रियल का सिस्टोल का टाइम कितना है, 0.1 सेकंड रहता है बेटा। सो एट्रियल डायस्टोल के लिए कितना होता है बोल तो 0.7 सेकंड।
एट्रियल डायस्टोल बोल तो जीरो पूरा कंप्लीट 0.8 सेकंड में एट्रिया के लिए अपन देखें तो 0.1 सेकंड कितने ले गया, एट्रियल सिस्टोल के लिए गया ना, सो एट्रियल डायस्टोल के लिए कितना होता है तो 0.7 सेकंड्स यहाँ पे हुआ जाता है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट एट्रियल सिस्टोल, किसमें कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल। नेक्स्ट वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में अपन देखेंगे। तो यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल सेकंड वन, so VS एट्रियल सिस्टोल AS, वेंट्रिकल सिस्टोल VS बोल के बोला जाता है बेटा। सो द इम्पल्स स्टार्टेड फ्रॉम द SA नोड, SA नोड से जो इम्पल्स आया है here अभी क्या होगा वेंट्रिकल सिस्टम में बोले तो द इम्पल्स कहाँ से SA नोड से AV नोड को आता है। इम्पल्स विच इज स्टार्टेड फ्रॉम SA नोड नाउ रीचेस द विच वन AV नोड। में इम्पल्स स्टार्टेड फ्रॉम SA नोड रीचेस व्हाट AV नोड। ओके ना, इम्पल्स कहाँ से आया, SA नोड से आए, सो इम्पल्स कहाँ जाता है बोले तो AV नोड को रीच हुआ जाता है बेटा। एंड AV नोड क्या होता है बोले तो गेट एक्साइटेड। अभी AV नोड क्या होता है, एक्साइट हुआ जाता है बेटा। इम्पल्स स्टार्ट कहाँ से हुआ, SA नोड से, सो SA नोड से स्टार्ट होके पूरा कहाँ बोले वॉल ऑफ एट्रिया में चले जाके वहां से कहाँ आया बोले तो AV नोड को आया, इंटरनोडल टिश्यू से। सो AV नोड को आने के बाद AV नोड क्या होता है बोले तो इट विल बी एक्साइटेड। सो AV नोड सेंड्स इम्पल्स टू विच वन, बंडल ऑफ हिज। AV नोड सेंड्स इम्पल्स टू कहाँ, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज को वो क्या होता है, इम्पल्स दिया जाता है बेटा। ओके ना, सो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ बंडल ऑफ हिज एंड फ्रॉम बंडल ऑफ हिज टू व्हाट पुरकिंजी फाइबर्स। बंडल ऑफ हिज टू कहाँ चले जाता, पुरकिंजी फाइबर्स को चले जाता। इम्पल्स कहाँ से कहाँ आया, अभी SA नोड से पूरा वॉल ऑफ एट्रिया को आया है। वॉल ऑफ एट्रिया को आने के बाद वहां से कहाँ आया तो AV नोड को आया है। AV नोड से वो इम्पल्स कहाँ गया बोले तो व्हाट इट कॉल्ड, आई एम सॉरी, बंडल ऑफ हिज को आया है। बंडल ऑफ हिज से कहाँ आता तो पुरकिंजी फाइबर्स को वो इम्पल्स आया जाता है बेटा। ओके ना, अभी उससे क्या होता है, पुरकिंजी फाइबर स्प्रेड इम्पल्स ऑल ओवर द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके ना, सो दीज अपन यहाँ पे लिखेंगे वो पुरकिंजी फाइबर्स का ही, दीज स्प्रेड द इम्पल्स टू all over the wall of ventricle। ओके ना, कहाँ से भेजा जाता है वो, ऑल ओवर द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल को वो इम्पल्स भेजा जाता है बेटा। सो ड्यू टू दिस वेंट्रिकल वॉल कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग ईच वन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू दिस वेंट्रिकल वॉल, ड्यू टू दिस वेंट्रिकल वॉल contracts and causes which one, ventricle systole। ओके ना, इससे पहले क्या हुआ था, एट्रियल सिस्टोल हुआ था। एट्रियल का वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो एंड वेंट्रिकल का वॉल कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हुआ था, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल का वॉल कॉन्ट्रैक्शन बोलते क्या होता, वेंट्रिकल का वॉल में रहे सो कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन। Okay na? So like this, which one the particular, what it called, the ventricle systole will be occur na, and during ventricle systole यहाँ पे उसके ये टाइम में क्या होता है, यहाँ पे एक बार देखें तो ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू विच वन, पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी अरोटा, व्हाट यू से, कौन सा ब्लड वो, डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ लेके जाता है वो, लंग्स को। ओके ना, during ventricle systole what happened, the
right ventricle pumps the deoxygenated blood into pulmonary trunk to which one? The particular type of lungs. And left ventricle, sorry, यहाँ पे left ventricle pump aorta or aorta, what it called systemic aorta. कौन सा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाता है? वो बॉडी पार्ट्स को। समझ में आ रहा है ना बेटा? यहाँ पे क्या हो रहा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में क्या होता है बोले तो यहाँ पे फिर से छोटी सी डायग्राम यहाँ पे लिया तो अभी ये इधर, ये इधर, ओके ना, ये राइट वेंट्रिकल, सॉरी वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट वेंट्रिकल से क्या होता है बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? ऊपर लंग्स को चले जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है बोले तो बॉडी पार्ट्स को चले जाता है, ओके ना। सो लाइक दैट व्हिच ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल what happen? The particular type of deoxygenated blood will be pumped into the pulmonary trunk to the what it called lungs, and oxygenated blood pumped to the aorta to the which one? The body part one. So in this ventricular systole, cuspid valves close both the atrioventricular apertures. यहाँ पे ये पॉइंट लिखना है बेटा अपन। During ventricle systole, cuspid valve, कौन सा अपन cuspid valve बोले तो tricuspid, dicuspid valve बोल के बोले ना, cuspid valves which are there during ventricle systole, what happen? The cuspid valves closes both the atrioventricular apertures, ओके ना। सो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो अपर्चर्स रहते हैं अपन बोले क्या? एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर बोले ना। तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर को क्या करते हैं बोले तो ये कस्पिड वाल्व जो होता है, कौन सा कस्पिड वाल्व, कौन सा रहता है बोल के मैं बोला? ट्राइकस्पिड एंड डाइकस्पिड मिट्रल वाल्व, ओके ना। सो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व रहता है। तो वो दोनों भी क्या होता है बोले तो क्लोज हो जाता है बेटा। टू प्रिवेंट द अपर्चर्स क्लोजेस बोथ द एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर्स टू prevents the which one? Backflow of blood into which one? Atria, ओके ना। वेंट्रिकल से एट्रिया में फिर से ब्लड नहीं जाने के लिए क्या होता है बोले तो ये दोनों क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर व्हाट इट कॉल्ड वाल्व जो होता है, कौन सा? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड कहाँ पे है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ओके ना। बाइकस्पिड कहाँ पे है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। सो वहां पे वो क्या करते हैं बोले तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होके प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ये टाइम में क्या होता है तो फर्स्ट साउंड आता है बेटा, फर्स्ट साउंड, इसको क्या बोलता है बोले तो लब, व्हाट इट कॉल्ड? लब बोल के बोला जाता है बेटा। तो फर्स्ट साउंड ये टाइम में आता है बेटा। एंड इन नॉर्मल कंडीशन वेंट्रिकल सिस्टोल लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड्स। वेंट्रिकल सिस्टोल कितना होता है बोले तो 0.3 सेकेंड्स होता है बेटा, ओके ना। तो वेंट्रिकल का डायस्टोल कितना रहता है बेटा? 0.8 सेकेंड में 3 सेकेंड चले गए तो वेंट्रिकल डायस्टोल इट इज फॉर 0.5 सेकेंड्स, ओके ना। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, डायस्टोल 0.7 सेकेंड ना। वेंट्रिकल सिस्टोल कितना है? 0.3 सेकेंड्स एंड डायस्टोल 0.5 सेकेंड्स यहाँ पे रहता है बेटा। सो ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल यहाँ पे क्या होता है? और एक बार डायस्टोल के टाइम में, ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, ओके ना। अभी सिस्टोल का हो गया, अभी डायस्टोल। ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल क्या होता है बोले तो सेमील्यूनार वाल्व्स, कहाँ पे रहता है ये सेमील्यूनार वाल्व्स बोले तो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक एरोटा में, पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एरोटा में। सो ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल सेमील्यूनार वाल्व्स आर क्लोज्ड to what it called preventing the backflow of blood into ventricles,
ओके ना। वो सेमिल्यूनर वाल्व्स क्या करता है बोले तो वो ऑलरेडी पंप होना ब्लड ऊपर, वो फिर से नीचे नहीं आने के लिए क्या होता है बोले तो ये यूज होता है बेटा। सो अभी ये सेमिल्यूनर वाल्व्स क्या होता है, क्लोज होते टाइम क्या होता है तो सेकंड साउंड आता है बेटा। ये फर्स्ट साउंड है ना, ये सेकंड साउंड यहाँ पे आता है, दैट इज डब बोल के बोला जाता है। डब और डब, थोड़े बुक में डब दिया है, थोड़े बुक में डब दिया है बेटा। सो यू कैन सी दैट। सो डब बोलता है, थोड़े बुक में डब, सो वट एवर डब और डब बोलता है बेटा। सो ऐसा डब साउंड आता है, सेकंड साउंड। सो फॉर अबाउट मेजरली ये क्या हो गया, 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड वेंट्रिकल सिस्टोल, 0.7 सेकंड एट्रियल डायस्टोल, 0.5 सेकंड वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। फॉर अबाउट 0.4 सेकंड both the atria and ventricle are in diastolic condition. 0.4 seconds. For about 0.4 seconds both atria and ventricle which are there, so these are in the where diastolic condition. Diastolic condition. तो दोनों भी क्या होता है तो रिलैक्स कंडीशन में रहता है, ओके ना। 0.4 सेकंड क्या होता है, दोनों भी डायस्टोलिक कंडीशन रहता है। व्हेन ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन डायस्टोलिक कंडीशन, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जॉइंट डायस्टोल बोल के बोला जाता है। जॉइंट डायस्टोल बोल के बोला जाता है, ओके ना। तीन रहता बोल के बोला, एट्रियल सिस्टोल, ओके ना, वेंट्रिकल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। ये जॉइंट डायस्टोल कितना 0.4 सेकंड रहता है, कंप्लीट डायस्टोल बोलता है। सो दस द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल विल बी 0.8 सेकंड्स, ओके ना। सो 0.1 सेकंड क्या है एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड्स व्हाट इट कॉल वेंट्रिकल सिस्टम, 0.4 सेकंड्स हो गया ना। सो जॉइंट डायस्टोल कितना है 0.4 सेकंड, बोलते कितना हो गया पूरा 0.8 सेकंड्स होता है बेटा। सो लाइक दिस विच वन द पर्टिकुलर व्हाट इट कॉल्ड द कार्डियक साइकिल विल बी प्रेजेंट मा। सो उसमें अभी यहाँ पे देखिए तो जनरली राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन विच वन डीऑक्सीनेटेड ब्लड and left side contain which one, oxygenated blood. So the total volume of the blood pumped during one ventricle systole is called as stroke volume. So we already know that, मैं आपको बताया वो कितना रहता है 70 ml रहता है बेटा। So the total volume of the blood which is pumped from the which one ventricle is called as what, the stroke volume बोल के बोला जाता है बेटा। So that stroke volume how much it will be, 70 ml वो रहता है बोल के मैं आपको इससे पहले बताया। तो इसमें कार्डियक आउटपुट और एक बार अपन यहाँ पे देखें तो कार्डियक आउटपुट के बारे में। सो द कार्डियक आउटपुट CO बोलता है, कार्डियक आउटपुट यहाँ पे देखें तो इसमें सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम द विच वन पर मिनट। सो यू नो फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितना होता है तो ये कार्डियक आउटपुट कितना होता है बोल तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला रहता है बेटा, CO इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये फार्मूला होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट बोलता है बेटा। सो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहता है 70, ओके ना, एंड हार्ट रेट कितना होता है 72। तो इससे टोटल कितना होता है तो 5040 ml पर मिनट, ओके ना। सो ऐसा क्या होता है तो कार्डियक आउटपुट को अपन कैलकुलेट कर सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट से, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंप्लीटली कार्डियक आउटपुट, ओके ना। सो दिस इज अबाउट द विच वन, द कार्डियक आउटपुट एंड पूरा कार्डियक साइकिल के बारे में बेटा, ओके ना। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इट कॉल्ड द ब्लड वेसल्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके ना, राइट।